Hello friends, after a long period of the time, once again, for the guidance, what is after BCom? What are the courses available after BCom in the MS University, particularly in the MS University? Which course offered by the MS University after BCom? So first of all, these are the basic courses which are offered by the university, which include diploma courses, master degree courses, certificate courses and LLB. These are courses generally offered by all the university, including our university. So first of all, 1 year diploma courses. 1 year diploma courses. It is course for the 1 year only, 2 semester, 1 year. Diploma in taxation practice, 1 year diploma courses. Numbers of courses offer, but these are the famous: diploma in taxation practice, DTP, diploma in finance management, DFM, diploma in labor practice, DLP, diploma in material management, DMM, diploma in management, diploma in business management, DBM, diploma in business management, diploma in banking and insurance. These are the diploma courses for 1 year, 2 semester. Cost is, as per university rules, near about below 10,000. Get it? For 1 year cost is 10,000. All above diploma courses are good courses and completed within a period of the 1 year. That is 2 semester. This course is completed within period of 1 year, that is 2 semester. So these diploma courses these are the diploma courses which are the famous in MS University. Get it? Next one, traditional courses. What are the traditional courses? What is the meaning of traditional courses? Which are generally offered by the whole university, which is known as a master degree. MCom with specialization in accounting, specialization in banking, specialization in economic, specialization in the general management. Okay. These are the MCom course. All master courses for the 2 years. This course for the 2 years. 2 year 4 semester. 2 year 4 semester. Second, MHRM, a master in human resources management, and MSW. These 2 courses are the famous. But for get admission in these courses, you are required to pass entrance exam, which is conducted by the MS University. You must have to pass entrance exam, personal interview and group discussion. Then after you are eligible to get admission. This course period is 2 years. This master course, MCom, MHRM, MSW. These are the master degree course. You are required 2 year period for completing this course. Requires somewhat hard work also. Cost is nominal. For 2 years, 20,000 expense. Get it? Next, third one, LLB. Now there is a wrong impression in the mind of the student that LLB, that is becoming the advocate only, and there is a no value. This is the wrong impression. LLB is a reputed course. Get it? It is a valuable, prestigious and reputed course. उसका रेपुटेशन एक अलग होता है. आप कहीं भी जाते हो, LLB का एक वकील का एक लेबल लगाया होता है, तो योर इंप्रेशन इज डिफरेंट. गेट इट? सो इट इज a valuable, prestigious and reputed courses. It is a 3 year duration course. 1 year practice का होता है. Get it? 3 year duration होता है total. 2 year education, 1 year practical. Total 3 year course. There are numbers of the scope after LLB. LLB के बाद बहुत सारे scope है. आप advocate तो बन ही सकते हो. You got the certificate of the practice, सर्टिफिकेट ऑफ LLB एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर सकोगे. उसमें ढेर सारे रास्ते हैं. LLB आप क्राइम में कर सकते हो, LLB सिविल कोर्ट के लिए है, LLB लैंड एंड एस्टेट का अलग होता है, LLB फाइनेंशियल अफेयर का अलग होता है. गेट इट? LLB जनरल इश्यू ऑफ द सोशल जनरल इश्यू, उसका LLB कर सकते हो. वो आप आगे LLB होने के बाद 1 साल का और कोर्स करने से ये स्पेशलाइजेशन हो जाता है. गेट इट? यू बिकम द लॉयर और एडवोकेट. यू बिकम द लॉयर. आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हर टाइप के केस कोर्ट में लड़ सकते हो आप. यू मे बिकम द नोटरी ऑल्सो. LLB होता है, उसको नोटरी का सर्टिफिकेट मिले तो घर पे बैठे रहना है, घर पे मॉर्निंग इवनिंग में नोटरी का काम करना है और डे टाइम में आप कोर्ट में जाओगे. कोर्ट में बैठ के भी नोटरी का काम कर सकते हो.
गुड इनकम, उसमें इनकम भी अच्छा होता है. गेट नेट. यू मे बिकम गवर्नमेंट प्लेडर और सॉलिसिटर. सरकारी वकील बनी શકો તમે. सपोज के जुगार खेलते हुए सब लोगों को पकड़ा, तो जो जुगारी लोग पकड़े गए हैं उसका केस तो उनका एडवोकेट लड़ेगा, पर पुलिस आपको लेके जाती है तो पुलिस का वकील कौन? इट इज नोन एज ए गवर्नमेंट प्लेडर, सरकारी वकील. गेट इट. सरकार के तरफ से केस लड़ने का आपको, वो जो पकड़े गए उसका केस लड़ने का, उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है. 2 तरीके से मिलता है रिटर्न, पर बहुत अच्छा मिलता है रिटर्न उसमें भी. गेट इट. देर आर ऑल्सो चांसेस टू बिकम लीगल एडवाइजर. बड़े बड़े एनजीओ होते हैं, उसमें लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि एनजीओ का काम क्या है? सोसाइटी का डेवलपमेंट का है. किसी ने ऐसा घर में कोई प्रॉब्लम हुआ, झगड़ा हुआ, तो जो कोर्ट में जाना नहीं चाहते तो एनजीओ के पास जाते हैं. तो इसमें एक एडवोकेट होता है, वो लीगल एडवाइस देता है. कोई बड़ा इश्यू हुआ, पड़ोसी झगड़ते हैं, तो कोर्ट में जाना नहीं चाहते तो एनजीओ बीच में रहती है, वो क्या करते हैं? समाधान करवा देते, कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते. तो उसमें एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे ट्रस्ट में भी होता है, समाज का ट्रस्ट होता है. इसमें हमारे समाज में तो है एडवोकेट, दो एडवोकेट को हमने अपॉइंट करके रखा है कि समाज के बारे में, समाज का छोटा बड़ा घर में प्रॉब्लम होता है तो कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं, वो बराबर समझा के लीगल फॉर्मेट कंप्लीट कर देगा उसका. ये जॉब भी आपको मिल सकती है. ऐसा आपको गलत फहमी है कि वकील बन के ऐसे काड़ो कोट पेरीने खाली फरिया रखवानुं, प्रेजेंट दे आर अनएम्प्लॉयड. ऐसा नहीं है. दूसरा एक सबसे अच्छा बताऊं, आप एडवोकेट बनने के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद आप एक इंटरनल एग्जाम दे सकते हो, जज का एग्जाम, एंड यू बिकम द जज. चांसेस टू बिकम जज आफ्टर पासिंग स्पेशल एग्जाम. आप एडवोकेट बनने के बाद 1.5 साल के बाद, 18 महीने के बाद ये एग्जाम दे सकते हैं, तो यू बिकम द जज. जज यानी गवर्नमेंट जॉब. पर आपको क्या थोड़ा वर्क तो करना पड़ेगा ना. यू हैव टू डू हार्ड वर्क. लायन इज अ किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इवन दो ही हैज टू डू हार्ड वर्क टू गेट द फूड. डियर्स कैन नॉट वेंट इन टू लायंस माउथ. गेट इट. ऐसा है, उसको भी हार्ड वर्क करना पड़ता है. तो हम तो कॉमन पर्सन हैं, हमें भी हार्ड वर्क करना पड़ता है. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन LLB फ्रॉम आनंद लॉ कॉलेज. सपोज के MS यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर में ऐसा होता है कि उसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है और सीट कम है, एग्जाम देने वाले बहुत सारे होते हैं, तो शायद आपका चांस नहीं लगता है. तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन LLB फ्रॉम आनंद लॉ कॉलेज, आनंद में, वो भी अच्छा कॉलेज है. ऐसे बहुत सारे वकील वहाँ से LLB करके आगे आए हैं, बहुत सारे वकील. गेट इट. डी एक ज़्यादा बोल देता हूँ. अदर सर्टिफाइड कोर्स ऑल्सो ऑफर बाय द MS यूनिवर्सिटी. 250 कोर्स MS यूनिवर्सिटी अदर ऑफर करती है. वो 3 महीने से लेकर 15 महीने का कोर्स होता है, फॉर ए पीरियड फ्रॉम द 3 months to 15 month का. ऐसे 200-250 कोर्स है. द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट एडल्ट एजुकेशन सेंटर. वहाँ जाओगे ना तो ये पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और वहाँ से आपको जो वेबसाइट देंगे उसी में देखो तो ये कोर्स का पूरा डिटेल मिलेगा. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कोर्सेज. आफ्टर BCom मैंने पहले समझाया आपको CA, CS, CA में CF है. बाद में मैंने MBA का समझाया कि MBA कैसे कर सकते हो. बाद में मैंने ये जनरल कोर्सेज के बारे में बताया, जिसमें कौन सा आ गया? डिप्लोमा कोर्स सब आ गए, ट्रेडिशनल कोर्स सब आ गए. ट्रेडिशनल कोर्स यानी मास्टर डिग्री. गेट इट. MCom, MHRM, MSW, ये सब आ गए उसके अंदर. फिर मैंने आपको समझाया LLB के बारे में. LLB का तो बहुत अच्छा स्कोप है. मैं तो स्टूडेंट को ऐसे भी बोलता हूँ, इफ़ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, CS एंड LLB दोनों साथ में ज्वाइन करो. CS एंड LLB दोनों साथ में ज्वाइन करो, क्योंकि CS में आधा कोर्स ऐसा है कि जो हमने FISY TV में पढ़ा है वही है, और आधा कोर्स आप LLB में पढ़ोगे वो है. यानी CS तो फ्री में मिल जाएगा आपको. गेट इट. ऐसा है. यू आर रिक्वायर्ड टू डू सम हार्ड वर्क. वो तो बात साफ है ना, बराबर है. तो मैं तो एडवाइस जैसे देता हूँ कि LLB करो तो साथ में CS ज्वाइन करना पड़े, करना अच्छा है. अच्छा, गर्ल्स है जो 1 साल का कोई कोर्स करना चाहती है तो उसको डिप्लोमा कोर्स करना एडवाइजेबल है. जैसा सोचते कि 1 साल के बाद नहीं पढ़ सकेंगे आगे, तो क्या करने का? 1 साल का डिप्लोमा का 2 सेमिस्टर का है, पढ़ने का चालू रखने का, उसको एंड नहीं कर देने का. ओवर एंड अबाउ इससे ज़्यादा मैं और एक बोल रहा हूँ. दिस इज स्पेशली फॉर द अवर स्टूडेंट, बरोडियन स्टूडेंट या तो स्टूडेंट ऑफ द ठक्कर क्लासेस. गेट इट. It is not a general information. It is for the particular student of the MS University and student of the Baroda. अच्छा, now listen to me.
इसे एक कंप्यूटर का भी अच्छा कोर्स है, कर लेना चाहिए। सर्टिफाइड कोर्स 15 महीने का 12 महीने का एक कोर्स होता है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऐसा कुछ है कोर्स। अकाउंटिंग सिस्टम, वो बहुत अच्छा कोर्स है। गेट इट। उसमें गर्ल्स के लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत बेनिफिट दिया, 70% डिस्काउंट है गर्ल्स के लिए। 50,000 का कोर्स होता है, 50,000 उसकी फ़ी होती है, तो उसको 70% गवर्नमेंट सब्सिडी दे देते हैं, तो खाली 15,000 में कोर्स होता है। हर रोज 2 आवर्स का कोर्स, 2 आवर्स 15 महीने चलेगा, पर पूरा कंप्यूटर सिस्टम अंदर पढ़ने में आ जाएगा। पाइथन के साथ सब कुछ, वो सब अंदर कवर हो जाएगा। तो ऐसा कंप्यूटर का कोर्स भी अच्छा है। आप पर्सनली मिलने आओगे, उस टाइम पे मैं सब आपको डिटेल में बताते रहूँगा। जब आप मिलने आओ तो कॉल करके आइएगा, या तो सुबह 8 से 10 में भी बीच में आओगे ना, तो मैं बहुत ही फ्री होता हूँ उस टाइम पे। 10 बजे के बाद दूसरे एडमिशन का प्रोसेस चालू है ना, तो उसका थोड़ा आना जाना रहता है, तो कॉल करके आओगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं आपको डिटेल में सब समझाऊंगा। आज यहीं आए ख़त्म करता हूँ, मिलते रहते फिर आपको। कभी भी डिफिकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनली मिलो। एजुकेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, अपने आप डिसीजन मत लो, तो पर्सनली मिलेंगे तो हर एक पर्सन को अलग अलग एडवाइस हो सकती है, हर एक पर्सन को अलग एडवाइस हो सकती है, बराबर। तो कांटेक्ट में पर्सनली अपने आप डिसीजन लेके, फिर ऐसे कहीं भी भर मत देना। सी यू, मिलता हूँ फिर। एंजॉय योरसेल्फ, सी यू।